Hi friends, this is Iyer sir. Welcome to my class Iyer's Institute, and I welcome you to this video lectures that we are conducting, and I hope I'll be able to help you out in your studies at this point of time. Today we're going to start with the chapter linear equations in two variables. This is of class 10th, standard 10th, Maharashtra State Board, and this is the first chapter. And this is also called as linear equation in two variables. Okay, यानी कि हिंदी में इसको युगपत समीकरण भी बोलते हैं. तो we हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि linear equations क्या है. Okay, तो we come down here और हम लोग समझते हैं what the meaning of linear equation. तो linear equation is equation of any straight line. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ equation of straight line. Okay. Now equation of straight line में equation with one variable हो सकता है. ये हम लोग normally ग्राफ में पढ़ते हैं equation with one variable. जैसा मैं लिखूँगा x is equal to 5, x is equal to minus 2, y is equal to 3, y is equal to minus 2. I have taken some examples ताकि हम लोग को समझ में आए कि ये इक्वेशन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. और ये आप लोग ने लास्ट ईयर ग्राफ सीखने के टाइम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है. तो x इज इक्वल टू 2 बोलूँगा या -2 बोलूँगा तो किस तरह से ड्रॉ करना है. और ये नॉर्मल हम लोग का ग्राफ पेपर सिंपल वन. तो सपोज आई हैव टू ड्रॉ x इज इक्वल टू 5. तो x का वैल्यू 5 किधर है, यहाँ पे किधर होगा. तो when we draw horizontal या vertical line ऐसा, तो ये straight line, this is a linear equation in one variable x is equal to 5. तो ये basic concepts हम लोग इसलिए याद रखते हैं कि कभी-कभी when we are solving equations graphically हम लोग ये easy पड़ेगा. तो x is equal to -2, यहाँ पे x is equal to -2. मैंने पहले से ही ये basic graph जो आप सबको पता है वो draw करके रखा है, ठीक है. तो y के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ब्लू कलर यूज करता हूँ. तो सपोज वी हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे है. तो वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. ये हो गया y इज इक्वल टू 3. सॉरी x लिख दिया मैंने. और y इज इक्वल टू -2 का वैल्यू यहाँ पे आता है. तो हियर वी गेट y is equal to -2. So equation of a straight line में दो टाइप का हो सकता है. Equation of a straight line with one variable, that is called equation in one variable. और उसके लिए equation होता है सिर्फ एक ही variable है, जैसे x is equal to 5, x is equal to -2, y is equal to -2, y is equal to 3. हम लोग को जो टाइप में what we have to study is linear equation in two variables. Now linear equation in two variables नाम से ही मालूम पड़ता है यहाँ पे एक वेरिएबल था. In this case we require two variables. Basically जो normally graphical में हम लोग सीखने जाएंगे तो हम लोग का variable will be x and y. Most cases में हम लोग x and y रखते हैं, but that is not necessary. Sums में हम लोग को variables आ सकता है with different alphabets, but typically हम लोग x and y लेते हैं. M और N होता है, P और Q होता है. तो I think तुम लोग को ये समझ में आएगा. तो इसका जनरल फॉर्म है, मैं जानबूझ के A को कैपिटल लिख रहा हूँ, B को कैपिटल लिख रहा हूँ और C को भी कैपिटल लिख रहा हूँ. तो ये जनरल फॉर्म. इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जैसा मैंने आपको बोला x and y आर वेरिएबल्स and a, b and c are real numbers. Okay, but here a should not be equal to 0, b should not be equal to 0. क्यों? Because अगर a 0 हो जाता है तो it will become like y is equal to 3. इस तरह से हो जाएगा, it will become equation one variable. या b is equal to 0 होएगा तो it will become something like this, x is equal to 5, x is equal to -2. इस तरह का equation हो जाएगा. तो in that case that's the reason कि a और b 0 नहीं होना चाहिए. Okay, now C 0 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है.
ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने दो ग्राफ बना के रखा हुआ है ताकि समझ में आए कि क्यों जीरो है और नहीं है। ओके, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और इसको लिखते हैं इन द फॉर्म, जनरल फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0. Now very important thing हम लोग को क्या समझना है, a और b जीरो नहीं हो सकता है, ओके, they are real numbers. ये a, b and c they are all real numbers, और a और b जीरो नहीं हो सकता है। और इसके हिसाब से अगर हम लोग उसको फर्दर बाइफर्केशन करेंगे या और स्प्लिट करेंगे तो c जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने उन दोनों को अलग से लिखा, जैसा ax plus by is equal to 0, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेन ग्राफ रखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है बट इट विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो या तो वो इस तरह से रहेगा, डेटा you can see this is of the form ax plus by is equal to 0, या किसी का वैल्यू कांस्टेंट है और ये भी उसी तरह का है। दिस इज आल्सो द सेम वे, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पर हम लोग बहुत क्रिएटिवली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जहाँ पे c is equal to 0 होगा तो इट विल बी लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हम लोग को ग्राफिकल सॉल्यूशंस में इजी पड़ेगा, इसलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू थोड़ा थोड़ा ग्राफ का रिफ्लेक्शन देते हुए। तो इस टाइप का लाइन इज दिस वन, और ये जो हम लोग डिटेल में इस साल में पढ़ने वाले हैं, लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, that is ax plus by plus c is equal to 0, equation of straight line not passing to origin। तो not passing to origin मतलब ये लाइंस इस तरह से रहेंगे, या तो it will go like this, यानी कि वो x एक्सिस को 0.3 पे कट करता है, y एक्सिस को समझो 4 पे कट करता है, इसलिए हम लोग उसको जनरल फॉर्म में x upon 4 plus y upon 3 is equal to 0 is equal to 1 लिख सकते हैं। This is the shortest way of writing equations। अब यहाँ पे समझो 2 और 4 पे से जा रहा है इस तरह से, तो ये इक्वेशन x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, -2, तो x upon -2 plus y upon -4 is equal to 1। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ax plus by plus c is equal to 0। अब रेड लाइन से दूसरा तो ड्रॉ करता हूं, तो सपोज यहाँ पे इस तरह से 3 से जाता है, यहाँ पे 3 है समझो और इधर भी 3 है, तो ये लाइन का इक्वेशन रहेगा x upon -3 plus y upon 3 is equal to 1। ना ये सब इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेगा तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। इसीलिए we say that it is equations in two variables। Now यहाँ पे जो हम लोग एक्चुअली पढ़ने चाहते हैं, ये तो खाली बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाने के पीछे रहा हूँ, बट जो एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो ये चैप्टर का मेन मकसद है। और उसमें हम लोग को दो इक्वेशन दिया रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी उस टॉपिक को हम लोग 2 सेकंड में देखते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लो कि इक्वेशंस कौन सा टाइप का होता है और उसको सॉल्व कैसा करता है मैं आपको बताऊं।